So hello students, welcome to my channel and we are heading towards another video of governor and his powers as per the Indian constitution. So as you see in the previous video, we discussed about the president and his powers and his relationship with the council of ministers. Moving ahead with the next topic, that is governor and his powers as per Indian constitution. So in this video, we'll understand the dynamics of India's gubernatorial rule. Meaning of gubernatorial is to steer or to govern. This is a Latin term taken from gubernare word, and gubernare means powers of the governor. That means to govern or to steer. This is a Latin word and you should know about this, that what we say to the powers of governor in Latin. So in Indian context, if I talk about gubernatorial discretion, that means it means discretionary powers exercised by the governor under the constitution. So moving ahead, first of all, I would like to tell you that who is the governor. Governor serves as the chief executive head of a state. See, like president at national level, governor acts as the titular or nominal head, that is constitutional head. The governor actually acts as an agent of central government, giving the office a dual role. So in this further slides, we'll discuss about that who is the governor. While each state usually has its own governor, the 7th Constitutional Amendment Act of 1956 allows the same person to be appointed as governor for 2 or more states. So ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर एक स्टेट का है तो वो दूसरे का नहीं हो सकता. By 7th Constitutional Amendment Act of 1956, it has been already told that the same person can be appointed as the governor of 2 or more states. Basically, he is a nominal head of state executive. So governor holds considerable influence in the state's policy through various powers which he has been given through by the constitution. So if we talk about that, what are the articles important? So there is basically part 6 of Indian constitution which talks about the position of governor. And if I talk about articles, so we have articles 153 to 167 in this particular part, which deals with the governor along with chief minister and council of ministers, also having advocate general of the state, which executes or which constitutes the state executive. So here are the outline, structure and functions of the state executive. And now we have to discuss about governor's office, including his appointment, what are the powers he is having, functions, qualifications and other related matters. So come on to article 153. Article 153 talks about that each state there shall be a governor, and this governor is appointed by the president for each state, serving as a vital link between union and state. This means that the person is appointed by president and president appoints it for each state. But here it is nothing in this article will apply on this, that there is no prevention in the appointment of same person as a governor for 2 or more states. So here a governor can be appointed for 1 or more states, and this has been held by 7th Constitutional Amendment Act of 1956. Next is like ये जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का, ये कैसे होता है. सो गवर्नर इज बेसिकली नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी, इफ आई से दैट की कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन अलग से होता है, लाइक इलेक्टोरल कॉलेज जैसे प्रेसिडेंट का होता था, तो वैसा कुछ भी नहीं होता है. अंडर आर्टिकल 155 देयर इज द पर्सन प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स गवर्नर थ्रू अ फॉर्मल वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. और यहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करती है गवर्नर को, एंड देन द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स दैट पर्टिकुलर पर्सन. इफ आई टॉक अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है गवर्नर के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट एक केस था हरगोविंद पंत केस. यू कैन ऑलवेज गो एंड सर्च अबाउट दिस. इट इज
हरगोविंद पंत केस ऑफ 1979। हरगोविंद पंत केस में गवर्नर की पोजीशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इट इज़ नॉट अ जॉब अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड और ना कि कोई सबॉर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो गवर्नर्स अपॉइंटमेंट है दैट इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और ये जो हमने अपॉइंटमेंट चुना है दैट हैज़ वी हैव बीन टेकन फ्रॉम कैनेडियन मॉडल, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस और अ स्टेट। सो दिस फीचर हैव वी हैव टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कि क्यों ये जो गवर्नर है ये अपॉइंट किया जाता है बट नॉट इलेक्टेड। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसने ऑप्ट किया था प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, जिससे कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सके। जो भी सीएम का जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कॉस्ट रिड्यूस कर सके, गवर्नर की न्यूट्रलिटी को हम प्रिजर्व कर सकें। डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है, कई बार सेपरेटिज्म आ जाता है, पर्सनल इश्यूज प्रायोरिटाइज हो जाते हैं और नेशनल इंटरेस्ट थोड़ा सा झुक जाता है। सो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन हो पाएगा, प्लस सेंटर जो है वो स्टेबिलिटी और कंट्रोल मेंटेन कर पाएगा ओवर द स्टेट इलेक्शंस। और ये जो कंट्रोल लगा रहे हैं, ये जो अकाउंटेबिलिटी लगा रहे हैं, दैट वाज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द गवर्नर. Now comes you must have heard about a commission named Sarkaria Commission. So Sarkaria Commission was very important if I talk about this governor's appointment. Governor को इंश्योर क्या करना पड़ता है, दैट इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करे। तो अकॉर्डिंग टू सरकारिया कमीशन, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात आई थी, यू कैन गो एंड रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर कमीशन. I will write a name here, that is सरकारिया कमीशन. सो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो सिलेक्शन है, जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का, ये कुछ गाइडलाइंस पे होना चाहिए. दिस हैज़ बीन गिवन बाय सरकारिया कमीशन. सो पहला था दैट ही मस्ट बी एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, बी डिस्टिंग्विश्ड इन सम फील्ड्स, आउटसाइड द स्टेट का होना चाहिए, इट शुड बी ही और शी शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स, और उसका मिनिमल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन पॉलिटिक्स, स्पेशली इन द पास्ट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स. पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का पॉइंट इसलिए आया क्योंकि अगर इफ़ ही इज़ अ पॉलिटिशियन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी तो उसको हम अपना गवर्नर नहीं बनाएंगे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे हमें पॉलिटिक्स वाला पार्ट ना लाके हमें क्या करना है, कैसे पर्सन को लाना है जो न्यूट्रल पर्सन हो. सो यहाँ पे गवर्नर, जो भी हम स्टेट का जो प्रेसिडेंट चुनता है गवर्नर, वो इट कैन बी बाय अ डिफरेंट पार्टी और कोलिशन, अलग किसी से होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द अपॉइंटेड गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस ये हुआ कि जिससे कि हम, अब देखो द प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है बट देयर मे बी द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट सीएम. तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है इन दैट, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेके आए हैं अंडर आर्टिकल 155 का जो अमेंडमेंट है, उसमें देयर कैन बी द कंसल्टेशन विद स्टेट सीएम. इनफॉर्मल ऑफ कोर्स कंसल्टेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर इनफॉर्मली कंसल्ट कर सकता है विद द वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा इन सेलेक्टिंग द गवर्नर, बट दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. एकदम ऐसा बाइंडिंग टाइप का नेचर नहीं होता है, दैट कैन बी इनफॉर्मल कंसल्टेशन. गवर्नर की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, दैट हैज़ बीन गिवन अंडर आर्टिकल 157 और 158 रिगार्डिंग दी क्वालिफिकेशंस. तो सबसे पहला आता है, दो ही क्वालिफिकेशंस हैं जो हमने 157 में इंक्लूड किया है, दैट फर्स्ट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड दैट उनका एज एटलीस्ट 35 ईयर्स होना चाहिए. यानी कि एक तो सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, प्लस 35 से ऊपर होना चाहिए, 35 प्लस, 35 से एटलीस्ट 35, दैट मीन्स 35 और अबव 35. नेक्स्ट आता है कि हमें जो ये 158 बताता है दैट गवर्नर के अपॉइंटमेंट में इम्पॉर्टेंट क्या है, दो चीज़ें अगेन इम्पॉर्टेंट है कि लोकल इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. दैट मीन्स, अब ये रीज़न क्या है, इम्पार्शियलिटी जिससे मेंटेन हो पाए, और गवर्नर को आइडियली ऐसा होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट से बाहर से हो. इसका क्या मतलब है बाहर से, क्यों, क्योंकि लोकल पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है उससे गवर्नर फिर फ्री रहेगा अगर वो किसी और स्टेट का होता है. कंसल्टेशन विद सीएम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट स्टेट सीएम, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर चल पाए, और उस पर्टिकुलर स्टेट में किस टाइप के गवर्नर का होना ज़रूरी है, ये ऑफ कोर्स क्योंकि लोकल या कह सकते हैं एक स्टेट स्पेसिफिक है, तो सीएम का कंसल्टेशन इज इम्पॉर्टेंट. एंड द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एनी अदर
प्लेस. सो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको इमीडिएटली ही हैज़ टू लेफ्ट इट. Next is the term and tenure. Term and tenure is for, of course, for 5 years. 5 years subject to the pleasure of president, ensuring continuity and central oversight. Next आता है गवर्नर का oath और confirmation. Oath देता है गवर्नर को. ओथ और एफर्मेशंस जो हम पढ़ते हैं अपने TEA टीयर्स ऑफ ओल्ड PM में, थर्ड शेड्यूल में देयर इज़ अ फॉर्मेट गिवन. और यहाँ पे जो गवर्नर है वो प्लेज करता है कि वो अपने ऑफिस में अपनी पोजीशन को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लॉ को डिफेंड करेगा और डेडिकेटली अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड फॉर द पीपल. सो ये जो ओथ है ये एडमिनिस्टर की जाती है बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट कंसर्न स्टेट जिसका वो पर्टिकुलर गवर्नर अपॉइंट हुआ है. इन केस इफ दैट पर्टिकुलर CJ ऑफ हाई कोर्ट इज मिसिंग या अनअवेलेबल है, सो वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज है उस कोर्ट का वो उनको ओथ दिलाएगा. सो दिस पर्टिकुलर oaths and affirmations are particular given इसलिए होती हैं कि the person can perform the duties of the governor properly. नेक्स्ट नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि 158 का थोड़ा सा और एक्सपैंड करके मैं अगर बताऊँ तो अभी मैंने बताया दैट द गवर्नर शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. इसका मतलब ये भी है दैट गवर्नर मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑल्सो. और अगर अपॉइंटमेंट है तो उनको अपनी पुरानी पोजिशन से हटना पड़ेगा, दैट इज़ अपना जो पुराना सीट है उसको वेकेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है कि गवर्नर को हम एक ऑफिशियल रेजिडेंस देते हैं जिनका यूज़ वो कर सकते हैं. राजभवन वी गिव टू द गवर्नर और विदाउट एनी पेमेंट्स और सम काइंड ऑफ पेमेंट टू दैट पर्टिकुलर रेजिडेंस. गवर्नर को अपने अलाउंसेज और जो भी एमोल्यूमेंट्स प्रिविलेजेस होते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है विच इज़ गिवन टू अंडर शेड्यूल 2 में ये मैंशनड है अबाउट एमोल्यूमेंट, सैलरीज एंड प्रिविलेजेस. अगर एक पर्सन गवर्नर है किसी एक स्टेट का तो वो मल्टीपल स्टेट्स का भी हो सकता है. तो वहाँ पे जो इमोल्यूमेंट्स है, जो अलाउंसेज हैं, जो बिटवीन स्टेट्स जो शेयर कर रहे हैं उनका प्रोपोर्शन जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि अब कितना पेमेंट इनको मिलेगा अगर ये एक से ज़्यादा स्टेट में शेयर कर रहे हैं अपनी गवर्नरशिप. सो गवर्नर का जो एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेज है ये रिड्यूस नहीं हो सकता है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इन ऑफिस. पहले जो डिसाइड हो गया अब वो वैसा ही रहेगा फॉर द पर्टिकुलर टर्म एंड टेन्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नर. नेक्स्ट इफ़ यू मूव फॉरवर्ड दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिकली कौन कौन सी की पावर्स होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर्स में पहला आता है बिकॉज उनको अपॉइंट किसने किया है, CM ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर की स्टेट ऑफिशियल्स ने. तो यहाँ पे जो गवर्नर अपॉइंटेड है फ्रॉम द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन विद CM. सो इफ़ अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नर हैज़ द authority to appoint key officials such as CM, ministers, advocate general, including the state election commissioner, chairman and members of state public service commission. और इस तरह के जो executive actions वो करेगा वो अपने नाम पे वो perform करता है. कुछ जगहों पे he can also make some laws if it's regarding the state administration. कुछ rules create कर सकता है regarding state business या फिर if he wants certain information from CM, and he can also serve as the chancellor of state यूनिवर्सिटीज़. कई बार देखा होगा दैट गवर्नर इज़ द चांसलर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी और बाद में वाइस चांसलर कोई और होता है, बट गवर्नर उस स्टेट का इज़ द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी. गवर्नर रिकमेंड भी कर सकता है इफ़ प्रेसिडेंट को कि अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगने जा रही है तो वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है दैट CM इज़ नॉट हैविंग द मेजॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट असेंबली एंड नाउ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. यानी जो हम 356 में स्टेट इमरजेंसी पढ़ते हैं उस स्टेट इमरजेंसी का पावर इज़ गिवन टू द गवर्नर ओनली. सो यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह जो बनाएगा यू कैन गो टू Article 356 to understand more about the state emergency, but that particular thing has been given to the power of
गवर्नर। नेक्स्ट आते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर्स पे। लेजिस्लेटिव पावर्स में पहला होता है दैट गवर्नर ऑल्सो होल्ड्स सम ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स इन विच ही कैन समन प्रोग्रामिंग एंड डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेटर अंडर आर्टिकल 174। सो यहाँ पे गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज पावर्स रिगार्डिंग दी लेजिस्लेचर, सेशंस एड्रेस कर सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट भी कर सकता है एंड ऑल्सो नॉमिनेट मेंबर्स एंड अदर थिंग कि एसेंट, बिल को एसेंट प्रोवाइड करेगा, विद होल्डिंग एसेंट, क्या पता उसको वो दोबारा से रिकमेंडेशंस रिकन्सिडरेशन करने के लिए रिकमेंडेशंस भी दे दे, प्लस रिकन्सिडर करने के लिए वापस से जो वो बिल है वो कर दे, दोबारा से अपने पर्टिकुलर स्टेट में वापस कर दे, अपनी बेसिकली वीटो पावर का यूज़ वो कर सकता है। सो हियर इट इज़ गिवन वीटो पावर टू दी गवर्नर। वीटो पावर का यूज़ करके बिल्स को या तो एसेंट दे दे, एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए, या रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट इन सर्टेन केसेस ऑल्सो। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वीटो पावर गिवन टू द गवर्नर्स। कुछ फाइनेंशियल पावर्स दी जाती हैं। फाइनेंशियल पावर्स इन द टर्म्स की इस्टेब्लिश कर सकता है फाइनेंशियल कमीशन को एवरी 5 years to review the financial positions of panchayats and municipalities, plus it oversees the state budget, approves money bills and grants and make them advantages to the contingency fund. Also discretionary powers in terms of limited to specific instances where the constitution explicitly allows। ये वाला केस अभी I'll discuss, then you will be clear कि discretionary power कैसी होती हैं। उसके अलावा it ensures the checks and balances without undermining democratic mandates। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से he needs to be following these particular constitutional in accordance with the constitutional provisions। So now moving ahead to judicial powers। कौन सी judicial powers होती हैं? ग्रांटिंग पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 161। ये हमने कल भी पढ़ा था दैट जैसे प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है एज इट इज़ वही पावर गवर्नर को दी जाती है, बट दोज विल बी एज पर दी स्टेट लॉज। और यहाँ पे कंसल्टेशन होता है विद द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट हाई कोर्ट जजेस। सो यहाँ पे अगर ही इज़ सस्पेंडिंग और ही इज़ रेमिटिंग और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस में, तो वहाँ पे द गवर्नर इज़ रिस्पॉन्सिबल, उनके हाथ में है, इफ़ ही वांट्स टू गिव ही कैन गिव। एडिशनली अगर मैं बात करूँ, सो अब जो गवर्नर है वो अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स, जो प्रमोशंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के, इन कंसल्टेशन विद ऑफ कोर्स स्टेट हाई कोर्ट्स, और जो भी अदर जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनका कंसल्टेशन लेके, और स्टेट पब्लिक सर्विस का कमीशन का जो कंसल्टेशन है उसको लेके ये सारा अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग्स और प्रमोशंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस में कर सकता है। सो बेसिकली अगर इफ़ वी सी द रोल, सो गवर्नर्स रोल इज डेलिकेट बैलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। सो नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 200 एंड 201 में जो बिल्स के रिगार्डिंग था, आई ऑलरेडी मैंशनड यू दैट ही इज़ हैविंग द पावर एसेंट टू द बिल, या तो वो अपना जो पर्टिकुलर एसेंट है वो उस बिल को दे दे, और फिर वो फर्दर जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाए इन द स्टेट लेजिस्लेचर। उस पर्टिकुलर एसेंट को होल्ड भी कर सकता है, प्लस दे सकता है कि नाउ इसको रिकन्सिडर कर लो। सो अब रिकन्सिडर के बाद जब उनके पास आएगा, सो ही हैज़ टू गिव द एसेंट। कुछ बिल्स को वो रिजर्व भी कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी पावर्स हैं या कुछ इस तरह के डेरोगेटिंग हाई कोर्ट पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जिसको नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट लाया गया है, एंड हियर इफ़ ही थिंक्स फिट वो प्रेसिडेंट के लिए रोक के रख सकता है, जिससे कि वो उनका रिकमेंडेशन ले सके इस पर्टिकुलर बिल पे। सो अब नाउ यहाँ पे एक केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। दिस आई डिस्कस लेटली इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। वहाँ पे क्या है, गवर्नर को रोका गया था कि आप अपना पॉकेट वीटो यूज़ करके, इसमें यह था कि आप किसी भी बिल को इतने टाइम के लिए नहीं रोक सकते हो जो कि इनडेफिनेटली आपने रोक रखा है विदाउट गिविंग एसेंट और अपना पॉकेट वीटो का यूज़ किया है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि एक्चुअल में ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस क्या था। सो दिस केस वाज रिगार्डिंग, एक तमिलनाडु के गवर्नर थे RN नवीन,
आर एन रवि जो थे वो उन्होंने 10 स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स को रोक रखा था एंड ही वॉज डेलिबरेटली डिलेइंग अप्रूवल इवन आफ्टर बिल्स वर रिप्रेजेंटेड विदाउट एनी चेंजेस। उन्होंने कई बार इन बिल्स को ओवर अ ईयर अपने पास इनकी एसेंट इनको नहीं दी थी और रोक रखा था, जिससे कि वो जो पर्टिकुलर बिल्स हैं पहले तो उनको दे दिया कि यू गो एंड रिकंसिडरेशन के बाद भी उसको रोक रखा था। सो इट वाज बेसिकली क्रिएटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक जैम बिटवीन द गवर्नर एंड इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट देर इज़ नो एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो अलाउड। मतलब स्टेट ने उस पर्टिकुलर कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर पावर दे रहा है वीटो की, दैट डजंट मीन्स कि वो पावर एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि पॉकेट वीटो इसलिए यूज़ नहीं किया जा सकता कि आप अपनी एसेंट को डिले करके इनडेफिनेटली उस पर्टिकुलर बिल को रोक के रखे हैं। गवर्नर्स मस्ट एक्ट विद इन द ऑप्शंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या बोलता है कि बिल जैसे ही रिसीव हुआ है गवर्नर को एसेंट देना है। अगर आपने एसेंट नहीं दिया या उसको विदहोल्ड कर लिया या फिर उसको रिटर्न किया दोबारा से लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए, या एक और चीज़ है रिजर्व कर सकता है फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। बट वंस द बिल इज रीपास्ड स्पेशली विदाउट अमेंडमेंट्स नाउ गवर्नर मस्ट ग्रांट असेंट। मतलब अब उसको होल्ड करने का कोई भी पावर नहीं दिया गया है। रिटर्निंग इट और विद होल्डिंग इट शुड नॉट बी इनडेफिनेट। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर फ़ायदा ही क्या है फिर उस ये पूरे प्रोसेस का, बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का। मतलब सारा जो सिस्टम है फिर वही बेकार है इफ दैट पर्टिकुलर वन पर्सन इज डेलिबरेटली होल्डिंग दैट पर्टिकुलर बिल। यहाँ पे ये भी आया कि आर्टिकल 200 डज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब अ टाइमलाइन, क्योंकि आर्टिकल 200 में कहीं पे भी टाइमलाइन मेंशन नहीं है। सो यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस यहाँ पे आई। पहला क्या आया कि 1 मंथ फॉर द एसेंट और विदहोल्ड ऑन एड एंड एडवाइस, 3 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता है फैक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस, एंड 1 मंथ अगेन टू एसेंट आफ्टर बिल इज रिकंसीडर्ड एंड पास्ड अगेन। मतलब करना ही करना है उसको इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में। So here the apex court observed that governors prolonged inaction lacked good faith। यहाँ पे बोनाफाइड जो दिखना चाहिए वो बोनाफाइड नहीं दिख रहा है, एंड दिस इज वायलेटिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, देयरफॉर दैट डिले इज विल बी ट्रीटेड एज इलीगल। नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स कोर्ट ने जो दे रखी थी आर्टिकल 142 में टू ट्रीट दिस 10 पेंडिंग बिल्स इफ दे हैड बीन एसेंटेड फ्रॉम द मोमेंट दे वर रिप्रेजेंटेड एंश्योर्ड कंप्लीट जस्टिस। यानी यहाँ पे जो पोस्ट रिकंसिडरेशन है उसमें कोई रिजर्वेशन इनको नहीं दिया गया। ही कैन नॉट रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन रिकंसिडर्ड और रीपास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और अगर ऐसा करता है दैट मीन्स कि आपने प्रॉपर जस्टिस अपनी जॉब के साथ नहीं किया है। जुडिशियल स्क्रूटनी अलाउ करी गई। कोर्ट ने रीअफर्म किया दैट गवर्नर्स डिसीजन ऑन बिल आर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल एडहेरेंस। मतलब कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नर का जो कंडक्ट है स्पेशली इफ इट्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ बिल्स वो हमेशा जुडिशियल स्क्रूटनी में रहेगा, जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में रहेगा, इवन इफ द गवर्नर साइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस और हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो दैट मीन्स कि जितने भी एक्शंस है गवर्नर के, दोज एक्शंस आर ऑलवेज अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो भी एक्शंस अब गवर्नर की साइड से होता है, भले ही वो कितना भी इसको बोले दैट इट इज़ इन कॉन्स्टिट्यूशनल एडहेरेंस, इट इज़ ऑलवेज अंडर द विंडो ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब आते हैं आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या कहता है हमसे, दैट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और गवर्नर्स पावर। क्या क्या चीज़ें हैं? President's power to consult the Supreme Court on question of law or fact. So here the President has referred 14 critical questions to the Supreme Court in which it is highlighting ongoing constitutional tensions and seeking the clarity on a governor's role. So here it is talked about ki whether this governor is bound by advice, is governor strictly bound by the council of ministers advice in all the cases, justiciability of discretion क्या है, can the governor's discretionary action under article 200 and 201 will be judicially reviewed, what is the timeline for assent, can courts impose specific timelines for the governor to give assent to bills, or what is pre-enactment review, what is the scope of judicial review before bill officially becomes a law. So the ongoing hearing is expected to provide crucial clarifications on the contours of the constitutional governing authority. So यहाँ पे जितने भी हमने डिस्क्रिशन दे रखा है
है गवर्नर को, जो फाइनल अथॉरिटी हमने बना रखा है. सो दिस पर्टिकुलर केस इज टॉकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड लेट्स सी व्हाट कम्स बाय दिस पर्टिकुलर रेफरेंस की किन किन जगहों पे, किन क्वेश्चंस पे ये आंसर आ सकता है दैट व्हाट इज हैविंग द, मतलब गवर्नर का सर्कल ऑफ पावर क्या बनता है. देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट केस लॉज we should always see while we are discussing, that is first is नबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर. 2016 का केस है. इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ गवर्नर जिनका नाम था जेपी राजकोआ. जेपी राजकोआ एक असेंबली सेशन मतलब इन्होंने एडवांस किया एंड इट वाज फ्रॉम जनवरी 14 टू दिसंबर 16 एंड विदाउट कंसल्टिंग सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मूव था ये फैसिलिटेटेड इसने कर दिया रिबल फैक्शंस और अटेम्प्ट किया टू इंक्रीज द स्पीकर एंड चेंज द गवर्नमेंट. यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो भी चीज़ें पॉलिटिकली चल रही थी, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगने का जो एक अर्जेंसी आ गई, वो प्रेसिडेंट रूल की आ गई और न्यू गवर्नमेंट लेके आना था अंडर कैल्को पोल. सो यहाँ पे ये केस पहुंचा कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो ये था दैट गवर्नर्स डिस्क्रिशन कैन नॉट ओवरराइड असेंबली मेजॉरिटी. मतलब गवर्नर प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है सीएम और काउंसिल की पावर्स को, या फिर अपने आप से किसी भी एक्शन को समन या फिर एडवांस सेशंस नहीं लेके आना है व्हेन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी एंजॉइंग द मेजॉरिटी पावर. यानी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है, दीज पावर्स आर लिमिटेड. ये गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हमने दे रखी है कि एब्सोल्यूट नहीं है एंड दीज मस्ट प्रिवेंट आर्बिट्ररी एक्शंस. यानी आप जो भी एक्शन कर रहे हो, आपको मान लो पावर्स दी गई हैं अंडर आर्टिकल 163, 174, 175. सो एडवांसिंग द सेशन विदाउट द एडवाइस ऑफ दिस काउंसिल, देयरफॉर इट ब्रीच्ड आर्टिकल 163 जहाँ पे एड एंड एडवाइस किया जाता है, 174 में समन किया जाता है एंड 175 में ही इज हैविंग लेजिस्लेटिव पावर्स. तो तीनों का वायलेशन हो गया. यहाँ पे कोर्ट ने गवर्नर के सारे ऑर्डर्स जो कि 9 दिसंबर 2015 के बाद करे गए थे उसको क्वैश कर दिया एंड ही दैट पर्टिकुलर कोर्ट रीइंस्टेटेड दैट कि जो नवम क्योंकि गवर्नमेंट है उसको हमने रीस्टोर किया है क्योंकि गवर्नर की वजह से वो पर्टिकुलर मशीनरी फेल हो गई थी. सो उसको इन्होंने रीस्टोर कर दिया. तो इट वाज अ बेसिकली रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्यो, कि जैसा पहला स्टेटस था वैसा स्टेटस उन्होंने वापस से एज इट इज़ ले आया. तो दे वर बेसिकली क्लॉक्स टर्न बैक. लिमिटेशन लगा दिया गवर्नर के डिस्क्रिशन का कि हम कुछ भी डिनाई नहीं कर रहे हैं उनकी पावर्स में. दिस केस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरुणाचल प्रदेश गवर्नर केस 2016 का. यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला दैट वी आर नॉट डिनाइंग ऑल डिस्क्रिशनरी पावर्स, बट कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया कि जो गवर्नर का डिस्क्रिशन है दैट इज़ नैरो. मतलब आपको हमेशा डोमेस्टिक नॉर्म्स में रह के अपनी पावर का यूज़ करना है. यू कैन नॉट शैडो द गवर्नर्स प्रीडोमिनेटली नोशनल रोल. जुडिशियल रिव्यू हमेशा अप्लाई किया जाएगा ओवर द गवर्नर्स एक्शन. सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो भी डिस्क्रिशनरी एक्शन गवर्नर ले रहे हैं दैट इज़ क्लोज टू जुडिशियल स्क्रूटनी. इट इज़ ऑलवेज ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी, स्पेशली इफ़ दे आर अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस. तो यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर किया दैट गवर्नर फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस लीडिंग टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अंडरस्कोरिंग जुडिशियल ओवरसाइट. सो यहाँ पे अगेन जुडिशियल रिव्यू का जो एम्बिट है वो अप्लाई कर दिया गया था. नेक्स्ट केस इज एसआर बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एसआर बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में देयर वाज दैट मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 बेस्ड ऑन दी गवर्नर्स रिपोर्ट का प्रॉब्लम था. कई सारे स्टेट्स में गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट मेंशन कर दी थी विदाउट इवन डूइंग द ग्राउंड फ्लोर टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट कि एक्चुअल में सीएम के पास मेजॉरिटी है भी या नहीं है. सो इस केस में it was a landmark judgment where the governor has to act on the aid and advice of council of ministers except in rare cases where discretion is explicitly permitted. जहाँ पे permission है that is okay, but नहीं है तो फिर this particular aid and advice वाला part has to be followed. So governor की report recommending president's rule is subject to judicial review. और जो test of majority है वो floor of the house में होना चाहिए. It is not decided by the governor. मतलब it's not
द एब्सोल्यूट पावर, ये हमने कोई ऐसी एक पावर नहीं दे दी है, ना कि हमने गवर्नर को एक ऐसा डिस्क्रिशन दिया है कि वो अपने होल सोल सेटिस्फैक्शन के हिसाब से वो एक्ट कर सके। इट्स इम्पॉर्टेंट कि फ्लोर टेस्ट हो, मेजॉरिटी टेस्ट हो इन दैट पर्टिकुलर हाउस, तभी हम पता कर पाएंगे दैट वेदर द सीएम और द पार्टी which is ruling has the majority or not. Next case is State of Punjab versus Principal Secretary. State of Punjab versus Principal Secretary में we were having State of Punjab as petitioner and Principal Secretary to the Governor of Punjab and others. So here there was some discussion regarding budget session summoning हो रही थी, और पंजाब के जो Council of Ministers हैं उन्होंने एडवाइस किया था गवर्नर को to convene the budget session मार्च 3, 2023 से स्टार्ट होना था। गवर्नर ने इसको डिले किया, साइटिंग द नीड ऑफ लीगल एडवाइस प्रॉम्प्टिंग द स्टेट टू फाइल अ रिट अंडर आर्टिकल 32। डिले हो रहा था विदाउट एनी वैलिड रीजंस, बिल्स को रिजर्व करके रखा था। सो हियर द इशू केम कि क्या गवर्नर के पास इस तरह के एडजर्नमेंट या इस तरह का रिकन्वीनिंग ऑफ असेंबली का पावर है या नहीं है। सो हियर इट वॉज स्टेटेड दैट, बाद में गवर्नर को क्वेश्चन किया गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी आपके रिकन्वीन सेशन की या विदहेल्ड सेशन की, एडवाइजिंग द स्टेट टू कॉल अ फ्रेश सेशन विद अ स्पेसिफिक एजेंडा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट गवर्नर की ड्यूटी है टू एक्ट ऑन द एडवाइस एंड without any delay. So yani we treat governor as a ceremonial head, and that ceremonial head is bound by the aid and advice of council of ministers. So he cannot unilaterally thought the legislative procedures, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ही हैज़ टू एक्ट इन दैट पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड रखते हैं। दैट मीन्स ही इज बाउंड बाय दीज एडवाइसेज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो एज पर आर्टिकल 200 गवर्नमेंट मस्ट डिक्लेयर हिज डिसीजन, एसेंट है, विद होल्ड है या बिल रिजर्व कर रहा है, एंड दैट एक्ट शुड बी एज सुन एज पॉसिबल। यानी इफ देर इज अ इनवैलिड रीजन्स है या इनवैलिड रीजन्स के साथ इनडेफिनेट डिले है, इफ देर इज delay and that delay is a kind of indefinite, that will be treated as unconstitutional, and or we can say that it's not constitutionally permissible. So here it was also stated that स्पीकर का जो एक्ट होता है ऑफ रिकन्वेनिंग आफ्टर अ साइंड एडजर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजरल अथॉरिटी में फॉल करता है, ये किसी भी टाइप का प्रोरोगेशन नहीं है। तो कास्टिंग डाउट ऑन सेशन लेजिटिमेसी फॉल आउटसाइड द गवर्नर्स ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ गवर्नर का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, बट जो स्पीकर की अथॉरिटी है दैट हैज़ बीन रिस्पेक्टेड। सो टाइमली एक्शन होना चाहिए। ही इज़ बाउंड बाय द एडवाइस, स्पीकर्स का प्रेरोगेटिव हो सकता है, इट इज़ नॉट निगेटेड बाय द गवर्नर। एक फेडरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, स्टेट ऑटोनॉमी और जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी आर्बिट्रेरी गुबरनेटोरियल एक्ट्स ना हो, इस वजह से हम इस पर्टिकुलर चीज़ को अपहोल्ड करते हैं। एंड देयर इज़ अ जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब किसी भी टाइम पे कोर्ट कैन इंटरवीन इनटू द correct constitutional overreach by the governor. So these are the very important cases in which we can see that how the governor acts. So if I talk about जो previous year कुछ questions आए हैं on the in this particular topic, so we can see first is what are the opinions available to governor under article 200 of the constitution. So here are some of the hints जो कि आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, एंड दीज हिंट्स प्रोवाइड यू कि आंसर आपको लिखना कैसे है। तो यहाँ पे एसेंट, विद होल्ड एंड रिटर्न और रिकन्सिडरेशन, यानी कि जो भी गवर्नर को पावर्स मिलती है, और प्लस द केस लॉज ऑल्सो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इन विच गवर्नर्स कैन नॉट indefinitely withhold assent or reserve after reconsideration. This has been told by the Supreme Courts. Is the governor bound by the aid and advice of council of ministers while exercising power under article 200? Very important that he is generally bound unless except in the limited situations. So Nabam Rabia case should be discussed here. Can the governor delay assent to bills indefinitely? Answer is no. Supreme Court in Tamil Nadu case prescribed the time limits to prevent pocket veto. पहले की slides में we discussed this in detail. Are the governor's decisions under Article 200 and 201 justiciable? Yes, judicial review is permissible. So ये basically 4 questions, इनका इन्हीं से related questions हमारे past year में पूछे गए हैं, और ये जो past year वाले questions हैं, these of course include the
लैंडमार्क केसेस, और ये जो लैंडमार्क केसेस ऑन गवर्नर्स पावर हैं, दिस हैज़ टू बी involved in these answers. So if I talk about कि पूरी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है, दैट मीन्स टाइमली एक्शंस इंश्योर्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. सो कंक्लूडिंग दिस टॉपिक, दैट मीन्स दैट गवर्नर की बात करें सो लगभग प्रेसिडेंट जैसा ही डिस्क्रिशन दिया गया है, कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, like governor may dismiss the council of ministers if they cannot prove their majority or dissolve the state legislative assembly if the ministers are losing their particular majority. कुछ special majorities भी दी जाती हैं, जैसे कि governor has specific responsibilities to fulfill based on the president's direction. कुछ direction president की side से भी आती हैं while consulting with CM या फिर जो भी वहाँ के council of ministers हैं, और governor को ultimately act करना होता है उनके discretion पे. So we can say that constitutionally लिमिटेड हैं उनके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जिसको एडहेयर करना होगा गवर्नर को. रीसेंट रूलिंग्स की वजह से वी नो दैट जो भी काम कर रहा है गवर्नर, उनका टाइमली रीइंफोर्समेंट होना ज़रूरी है, डीले नहीं कर सकते. ऑलवेज देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, जिससे कि डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज़ ना हो पाए और हम अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को अपहोल्ड कर पाएँ. अंडरस्टैंडिंग दीज पावर इज बेसिकली गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ये जो गवर्नर है ये आगे फर्दर एक्ट करे, और प्रेसिडेंट की साइड से अगर कोई डायरेक्शन आता है तो उस डायरेक्शन पे एक्ट करना इज़ द टास्क ऑफ गवर्नर. सो आई होप दैट दिस टॉपिक इज़ बीइंग क्लियर टू यू. आपको समझ आया है कि इन आर्टिकल्स में किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किन लिमिटेशंस का यूज़ किया जा रहा है. एंड talking about the governor's all over role in our constitutional sphere is being clear to you. If you have any questions, you can anytime ask. You can comment below and you can ask me about what additional things you are having in this particular topic. Also, I'm talking about the questions here, so you can write and you can practice writing your answers जो भी questions मैंने यहाँ पे discuss किए हैं with using these topics, these slides also. And let's discuss about the governor's power in this constitutional balance, and what kind of parliamentary system of government is there in the states, what is the role of governor, we have discussed here. I think so that it's clear to you, and if you are having any problem you can always discuss it with me. So thank you so much, thank you for watching this video. Like, share and subscribe. Thank you so much. We'll see you in the next video with the next topic.